जय हिंद और जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आनंद रंगनाथन का वीडियो और सेकुलरिज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फिर वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और आरंभ करते हैं वीडियो को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। There are two issues here, and I think both merit going into. What is secularism, and are we secular? Look, Rahul, a system, a discovery, a characteristic may have its etymology or origin in the European or Western thought or philosophy. But that characteristic, that discovery, that system can and does exist in the East or anywhere around the world. That the B form of DNA is double helical is not just a Western concept, it's a global concept. The genomic DNA of Indians is also double helical. Darwin's theory of evolution is not a Western concept. It describes and explains evolution everywhere. There is nothing called European double helical DNA or Indian double helical DNA. There is only double helical DNA. Similarly, the concept of secularism may have originated in the West. It may be understood as secularism being total separation of religion and state or church and state, total. But the meaning of this concept cannot be changed to suit a particular nation or ideology. You are either secular or you are not secular. And our state is plural. Our state is not secular. There are half a dozen articles and amendments and directive principles in our constitution that make it plural, not secular. In fact, as you rightly said, the word secular was inserted in our preamble by Indira Gandhi during the emergency. It was absent from Ambedkar's constitution. But why do we feel plural is bad? Do we have a complex against nations that are secular? And why must we feel it is bad to be plural? Why must we insist that plural means secular? It does not. Our state declares itself to be secular, but is shamelessly not so. You can have the state and the government give Hajj subsidies for decades, use taxpayers' money to host grand iftar parties, plunder state coffers to pay monthly salaries to thousands of Maulvis, ask government-run UGC to completely fund minority institutions that keep 50% seats reserved for Christians, step in to overturn a Supreme Court judgment just to appease Muslims, leech thousands of crores preferentially exclusively from Hindu temples, sell off and control thousands of acres of Hindu temple land, spend hundreds of crores of taxpayer money for the Kartarpur corridor, run madrasas and still be secular. Secularism for us is when, quote, there is no deity except Allah and no one has the right to be worshipped but him, unquote, amplified through the loudspeaker 5 times a day is creating enmity. But peacefully chanting Hanuman Chalisa while not denigrating anyone else's religion is creating enmity. Secularism is when reciting polytheists are the worst of creatures near a temple is not provocative, but reciting Bhajman Ramcharan Sukhdai one day in a year near a mosque is. Secularism is controlling and taxing only temples but not mosques. It is fighting for Muslims to wear hijab to school, but beating Hindus for wearing Kalawa Bindi and Pirak to school. Secularism is respecting the Supreme Court Sabrimala judgment, but overturning the Supreme Court Shah Bano judgment. For how long, Rahul, will we pretend that we are not practicing secularism, but rather appeasement or pluralism? Rahul, if you truly believe that religion should keep out of state, the corollary is equally applicable. This is logic. It's embarrassing to state it again and again. The state should also keep out of religion. Does it? No. Why is the state paying the surveyors of the Waqf board? Why is the state paying salaries to Maulvis? Why is the state giving interest-free loans to set up shops on Waqf land and mosque land? Why is the state running madrasas? Why is the state giving hundreds of crores to set up Christian Development Corporation? How can a state be secular and at the same time control more than 100,000 Hindu temples? Rahul, should we be secular? Yes. But are we? No. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि हमारा वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख सकें और अपना व्यू आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, जैसे पहले बोला था मैंने। तो फिर इस वीडियो में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आनंद रंगनाथन बात कर रहे हैं हमारा देश का एक मच अब्यूज्ड और डिफ्यूज्ड और बिल्कुल कचरा वर्ड है सेक्युलरिज़म, जिसको बहुत सारे लोग सेक्युलरिज़म भी बोलते हैं। क्योंकि ये जो सेक्युलरिज़म है ये वन साइडेड सेक्युलरिज़म है, बस एक साइड के लिए सेक्युलरिज़म है, वो है हिंदुओं के लिए। हिंदुओं को बोल रहे हैं पूरा देश के लोग, पूरे जो माइनॉरिटी हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो या मुस्लिम माइनॉरिटी हो, कुछ हद तक ये जो
नियो बुद्धिस्ट हैं ये भी, कि आप प्रैक्टिस करिए सेक्युलरिज्म को, पूरी हद तक पर प्रैक्टिस करिए आप, पर हम नहीं प्रैक्टिस करेंगे सेक्युलरिज्म को। हम आपके लोगों को कन्वर्ट करेंगे बाय हुक और बाय क्रुक। आपकी जो औरतें हैं उनको हम लव जिहाद के थ्रू अपना नाम चेंज करके उनको शादी करेंगे, खास करके मुसलमानों के ऊपर ये इल्ज़ाम बनता है, क्योंकि इनके जो ये लड़के चपाटे हैं इन लोगों को एक अजीब सा चुल बनाया जाता है कि इनको पूरी दुनिया को कन्वर्ट करना है। और क्रिश्चियंस का तो आप लोगों को पता ही होगा, उनको तो लगता है कि वी शुड सेव समबडी फ्रॉम दिस आइडियलेटरी। ये क्रिश्चियंस का भी एक कॉन्सेप्ट है कि ये जो बुत परस्ती करते हैं, ये जो आइडियलेटरी करते हैं, ये जो फॉल्स भगवान को प्रे करते हैं, ये एंड में जाके हेल में जाएंगे। उनको सेव करने के लिए हम जीसस के पास लेके आएंगे। और मुसलमानों का भी यही है कि ये जहन्नम के आग से आपको बचना है तो आप हमारे जो भगवान हैं उनको ही भगवान मानो, और एक ही भगवान है वो हमारे भगवान है। क्रिश्चियंस आप समझ लीजिए एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से कन्वर्ट कराते हैं, पर ये जो मुसलमान लीडरशिप है, मुसलमान जो ये क्लेरिकल लीडरशिप है और बहुत सारे जो लीडरशिप है, ये बिल्कुल अजीब व गरीब तरीके से बाई सब्टरफ्यूज बाई एवरी मीन जो भी करो कन्वर्ट कराओ लोगों को। झूठ बोलो कन्वर्ट कराओ, सच बोलो कन्वर्ट कराओ, जो भी बोलो कन्वर्ट कराओ लोगों को। ये एक सेकुलरिज्म का एक माइनस पॉइंट है। और सेकुलरिज्म बस एक ही रिलीजन को फॉलो करना है, वो हिंदुइज़्म। उसको फॉलो करने के लिए हिंदुइज़्म का जो भी प्रैक्टिसेस है वो उसको आपको त्यागना होगा। समझ लीजिए आप राम मंदिर में विश्वास रखते हो तो आप हिंदू नहीं हो, आप सेकुलर नहीं हो। आपको सेकुलरिज्म बस प्रैक्टिस करते रहना है। बस देश का जो सेकुलरिज्म है वो एक जोक बन चुका है, क्योंकि इस सेकुलरिज्म के कारण हमारे जो मंदिर हैं वो भी स्टेट के कंट्रोल में है, पर दूसरे रिलीजन के जो वर्शिपिंग प्लेसेस है वो स्टेट के कंट्रोल में नहीं है, जैसे चर्चेज़ हो और मॉस्क हो। तो फिर वो तो स्टेट के कंट्रोल भी नहीं है, और वो अपना जो रिलीजियस प्रोपोगेशन है वो पूरी तरह कर सकते हैं उस पैसे से जो उनको मिलता है अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से। जैसे चर्च से पैसा मिलता है तो फिर वो कॉन्वेंट स्कूल्स और ये सब बनाते हैं, और ये मॉस्क से पैसा मिलता है तो फिर ये लोग अपना मदरसा बनाते हैं और लोगों को कन्विंस कराते हैं कि आप जाके दावत दो लोगों को। जैसे ये जाकिर नायक वाइक टाइप लोग हैं, वो भी हिंदू ही बोलते हैं कि आप ही करिए, आप ही कन्वर्ट करिए, और हिंदुओं को कुछ नहीं है, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं हम लोग। और जैसे कांग्रेस पार्टी है, ये भी एक सेकुलर पार्टी है। इसको जब से 2024 इलेक्शन का इनको 99 सीट्स मिल गया है ना, उससे पहले आप देखते होंगे इन लोगों को कि ये एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स देना बंद कर दिया था इनने। इतना फ्रीक्वेंटली नहीं देते थे। अगर कोई और देता भी था, जैसे डीएमके देता था एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स, तो फिर ये उसको बहिष्कार करते थे और बोलते थे इसने गलत किया है। पर अभी इन लोगों ने जब से एक कास्ट वाइज हिंदुओं को तोड़ने में कुछ हद तक ये सफल हुए थे 24 इलेक्शन में, उस सफलता के बाद ये लोगों को लग रहा है कि हम हिंदुओं को फिर से बांट सकते हैं। बस हमें अपना जो एक मुसलमान वोट है, जो समझ लीजिए 14% है, ये अपने आप को 20% बोलते रहते हैं, ये झूठ है। वो झूठ नहीं मानेंगे हम लोग। ये होंगे 12% या 14%, मैक्सिमम 16%, और 16% से ज़्यादा नहीं होंगे। तो फिर वो एक उनका सब्स्टिट्यूट है, और ये हिंदुओं को बस गाली देने का एक नया तरीका पकड़ा रही है इन लोगों ने। हिंदुओं को भी पता होना चाहिए कि आप सेकुलरिज्म प्रैक्टिस नहीं करिए, आप अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस से प्राउड हुई। जैसे पवन कल्याण ने ये जो लड्डू का कंट्रोवर्सी हुआ था उसके ऊपर बोला था कि आप जो लड्डू के हुआ था तो बोले थे कि आप हिंदू बनने में गर्व अनुभूति करिए। आप एक ऐसे सिविलाइजेशनल हिस्ट्री से हैं जो अभी तक ज़िंदा है। आप लोगों को तो पता होगा कि इजिप्ट में एक सिविलाइजेशन हुआ करता था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हुआ करता था, इनका और एस्टेक सिविलाइजेशन हुआ करता था। ये सब लोग भी पॉलीथीस्ट थे, ये भी एक भगवान पे बिलीव नहीं करते थे।
ये भी अनेक भगवानों पे बिलीव करते थे, जैसे जीस, पोसाइडन, ये ग्रीक सिविलाइजेशन का था, रोमन सिविलाइजेशन का भी एक था। तो फिर ये जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है हमारा, ये जो सिविलाइजेशन स्टेट्स का हिस्ट्री है, जो ये जो आक्रांताकारी रिलीजन्स हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी ने यूरोप में पूरी तरह अपना कब्ज़ा बनाया, ये पूरा का पूरा जो उधर पोलिथिस्टिक रूल था उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया रोमन एम्पायर के बाद। और उस ख़त्म होने के बाद ही अब हमारा देश में, आपको तो पता ही होगा, ये जो इस्लामिक अटैक्स हुए थे, गोरी, गजनवी, ऐसे लोगों का, ये सब, इन सब को भी सेकुलर बोलते हैं लोग, सेकुलर लोग, कि ये सेकुलर लोग थे, ये बिल्कुल पंथ निरपेक्ष थे, ये लोग कुछ गलत नहीं करते थे। अकबर, ये औरंगज़ेब, बाबर, ये सब लोग तो बिल्कुल पीसफुल तरीके से आए थे इस देश में, वो सेकुलर लोग बोलते हैं। तो फिर ये भी एक आर्गूमेंट है उन लोगों का। तो फिर आप वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, लाइक करने से वीडियो का रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाता है। शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी मिले। कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय हिंद। और दोस्तों